Good afternoon, everyone. Let's continue with our revision for profits and gains of business and profession. Barabar? Now, before I proceed, I just want to tell you one or two concepts. Or I think first I'll do questions in middle. I'll do a little bit of theory part with you all. So, हमने कल कौन सा क्वेश्चन किया था? अपना कौन सा हो गया था? ये एक्स 55 ईयर्स, ये हो गया ना अपना क्वेश्चन, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये 9th वाला, ये हो गया ना? या यस, यहाँ पे एक करेक्शन कर देना, इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट का अमाउंट 15,000 कर देना. Yes. The next question, X 45 years. This is again an exam question. Yeah, it's an exam question. So let's quickly do it. Let's read the question carefully and solve it. I don't have it now. I don't have it now. Sit next to her. Okay, let's start. X 45 years, a resident individual is a chartered accountant in practice. He maintains his books on cash basis. यहाँ पे clearly दिया है, he is maintaining his books on cash basis. It's a fact of the question. His profit and loss account for the year ended 31st March 2019 is as follows. Now, fees earned, you have audit and taxation. For audit and some taxation का fees है. Consultancy services relating to syndication of loans from financial institutions. Gifts. Dividend from Indian companies 12 lakhs. Interest on deposit, please change this. You make it to how much is the interest? 15,000. Make it 15,000. Interest on deposit under certificates issued under gold monetization scheme 2015. On the debit side, we have staff salary, rent of office premises, administrative expenses, stipend to article clerks, meeting, seminar, conferences, depreciation, printing stationery, and then you have net profit. Depreciation allowable under section 32 is 1,25,000. Administrative expenses include 55,000 paid to tax consultant in cash for assisting X in one of his professional assignments. Gifts represent fair market value of LED TV which was given by one of the clients for successful representation in case in ITAT. ITAT is Income Tax Appellate Tribunal. जब हम कमिश्नर के साथ असेसिंग ऑफिसर फिर कमिश्नर चीफ कमिश्नर के साथ हमारा केसेस चलते हैं, that pick up your cases for scrutiny and you're not happy with the order that commissioner has passed, then you can file an appeal. आप appeal file कर सकते हो. The first authority is ITAT, is Income Tax Appellate Tribunal. In Pune, our Income Tax Appellate Tribunal is in camp, so we have a lot of cases going on there. ITAT के बाद it goes to the High Court and then you can go to the Supreme Court. That's how it is happening. बराबर? तो आगे, last month's rent of 50,000 was paid without deduction of tax at source. X had taken a loan of 32 lakhs for purchase of a house property valuing 45 lakhs from a recognized financial institution on 1st May 2018. He repaid 1,50,000 on 31st March 2019, out of which 1 lakh is towards principal payment and the balance is for interest on loan. Possession of that house property will be handed over to him in October 2019. X paid medical insurance premium for his parents, senior citizens and not dependent on him by check amounting to 27,000. He also paid 8,500 in cash towards preventive health checkup for himself and his spouse. Compute the total income of X and tax payable by him for assessment year 1920. X does not want to opt. Clearly indication given to you कि he does not want to opt for presumptive scheme under section 44 ADA. अगर ये सेंटेंस नहीं होता तो आपको तुरंत, हमेशा मैंने आपको क्या बोला है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स में 2 हिंट्स याद रखो आप. क्या है? या कि कैश फॉलो कर रहे हो या मर्केंटाइल, पहले डिसाइड कर दो, नहीं तो आप एंड में कंप्लीट होने के बाद सोचोगे तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा. और ये सोचने का कि प्रिजम्पटिव है कि नहीं है इसमें, समझ में आ रहा है? तो ये 2 चीजें नोट करके रखो, एग्जाम के एक दिन पहले ये पढ़ के जाना है आपको. बराबर है क्या? नाउ इंस्ट्रक्शन क्या है? अंडरलाइन द इंस्ट्रक्शन. कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ एक्स एंड टैक्स पेएबल फॉर AY 1920. ठीक है, मतलब अपने को टोटल इनकम चाहिए, मतलब अपने को डिडक्शंस पे फोकस करना है. ये जो पहला, इनफैक्ट इवन कल का जो क्वेश्चन था वो 16 मार्क का नहीं था, वो CA वाला क्वेश्चन था ना. आई वॉज चेकिंग द मार्क्स, 10 मार्क्स के लिए था वो.
It was for 10 marks. So it's like time consuming. You're going to take time. First question is that we are little lengthy, but don't bother. बाकी क्या easy जाएंगे, and then you may save time on your MCQs also. And मैंने क्या बोला MCQ solve करते वक्त क्या हिंट दिया आपको? अगर MCQ प्रैक्टिकल वाला MCQ हो, टैक्स लायबिलिटी निकालना, कैलसी पे करके नहीं चलेगा. कीप अ वर्किंग रेडी विथ यू. बाय चांस आपने कैलसी पे किया और आपका जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में है ही नहीं, वापस डबल टाइम जाएगा, है कि नहीं? तो उससे अच्छा है कि नोट करके रखो. मेक अ रफ स्पेस, राइट डाउन. लास्ट के 2 पेजेस आप लिख देना, रफ वर्किंग फॉर एमसीक्यूज. डू यू अंडरस्टैंड? तो तुरंत चेकिंग में आपका टाइम सेव होगा. समझ में आ रहा है क्या? हाँ. नाउ सो यू रीड द क्वेश्चन. आप सोचो अभी, डिडक्शंस के बारे में सोचना, हेड्स ऑफ इनकम के बारे में सोचना. 2 मिनट अच्छे से प्लानिंग करो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले. सोचो सोचो. टेल योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन आई विल आस्क यू. ये आगे के क्वेश्चंस हैं. इसमें पीजीबीपी और आई थिंक आईओएस दिया था मैंने पहले. आपने बाद में बोला कि पहले कैपिटल गेन्स लो, बट मैं पहले कैपिटल गेन्स ही लूंगी, बट आईओएस रेडी था तो मैंने दे दिया. चलो डन है क्या? चलो करो चालू, स्टार्ट करो सॉल्विंग. बताओ कितने हेड्स ऑफ इनकम है आपका, क्या कंक्लूजन निकाला है? 2. कौन से 2 हेड्स ऑफ इनकम है? पीजीबीपी एंड आईओएस. ओके. और घर से रिलेटेड कुछ लग रहा है आपको? एचपी कब आ रहा है उसका पता है एग्जिस्टेंस में? एचपी इज कमिंग इन एग्जिस्टेंस इन नेक्स्ट ईयर. तो इस साल का जो भी इंटरेस्ट होगा वो नेक्स्ट ईयर जब एचपी एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, अक्टूबर 2019 में मिला है उसको, तो वो नेक्स्ट ईयर प्री कंस्ट्रक्शन आएगा. घर एग्जिस्टेंस में नहीं है. समझ में आ रहा है कि आपको घर एग्जिस्टेंस में है क्या? नहीं है. ठीक है, आई टेल यू अगेन. सो गिव द हेडिंग, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ एक्स फॉर एवाई 1920. राइटिंग स्पीड सुपर फास्ट. Do you want a note for iOS? Yes. और आपको क्या लग रहा है कितना स्पेस इसके लिए देना पड़ेगा डिडक्शंस के लिए? होते हैं नॉर्मली काफी सारे डिडक्शंस होते हैं, राइट? सो लीव 4-5 लाइन्स फॉर योर डिडक्शंस, देन से एनटीआई, एंड एनटीआई के बाद लीव सम स्पेस वो टैक्स वगैरह कैलकुलेशंस के लिए. रेडी है?
करेक्ट, रेडी हो? नोट 1 करो। तो क्या याद रखना है नोट 1 में? असेस इज फॉलोइंग कैश सिस्टम। यस, सो लेट्स डू इट नाउ। Yeah. Note 1. Profits and gains of business and profession into bracket cash basis. Particulars, 2 columns, inner column and outer column. Net profit as per profit and loss account. $19,13,500. उसके बाद staff salary. Is there any adjustment? No. So all right. Rent of office premises 6 lakhs. There is an adjustment कि 1 month का जो रेंट है इट वॉज पेड विदाउट डिडक्टिंग TDS, सो उसको डिसअलाउंस आ जाएगा। यस, 40A का डिसअलाउंस आएगा। कितना डिसअलाउंस आएगा? 30%। हाँ, तो राइट डाउन एड, ये ऑफिस के रेंट की बात हो रही है, रेंट पेड विदाउट TDS। सिर्फ एक ही मंथ में ऐसा हुआ कि आप TDS कट करना भूल गए, तो 40A के हिसाब से डिसअलाउंस इज इक्वल टू 30% of 50,000, that is 15,000. Everybody काय झालं? हो का? ठीक है। Second, after that, administrative expenses. Is there any adjustment for administrative? Yes, administrative expenses, second adjustment. Include 55,000 paid to a tax consultant for some professional assignment. तो कैश में दे सकते हो क्या आप? नहीं, तो ये डिसअलाउंस है। कौन सा सेक्शन है ये? 40A3, बराबर। सेक्शन भूल गए तो भी चलेगा, एडजस्टमेंट करके आना। हाँ, सो सेकेंड, कैश पेमेंट टू अ प्रोफेशनल, $40A3 का डिसअलाउंस है, 55,000 डिसअलाउंस, बराबर है। आगे मीटिंग, अच्छा, स्टाइपेंड टू आर्टिकल क्लर्क्स, इज इट अलाउेबल एक्सपेंडिचर? यस। मीटिंग, सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेज, इज दिस एन अलाउेबल एक्सपेंडिचर? यस। डेप्रिसिएशन, देयर इज अ डायरेक्ट एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन अकाउंटेंट ने 55,000 डेबिट किया है। एडजस्टमेंट नंबर 1 सेज डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 इज 1,25,000, तो डेबिट करना था 125, अकाउंटेंट ने कम डेबिट किया, तो और भी डेबिट करो। और कितना? 70,000, तो 70,000 और डेबिट करो, मतलब प्रॉफिट से कम करो। यस, सो लीव 3-4 लाइन्स फॉर एड एंड देन से लेस depreciation 1,25,000 minus 55,000, so that is coming to 70,000, करेक्ट। अकाउंटेंट ने कम डेबिट किया, और भी डेबिट करना है। डेबिट मतलब खर्चा प्रॉफिट से कम होता है, लेस होता है वो, बराबर है। आगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इज देयर एनी एडजस्टमेंट? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, नो एडजस्टमेंट। एनपी हो गया। कम टू द क्रेडिट साइड। नाउ क्रेडिट साइड में थिंकिंग बदलने का। क्रेडिट मतलब इनकम के जैसे सोचने का। फीस अर्न, ऑडिट के लिए, टैक्सेशन के लिए, नो प्रॉब्लम। कंसल्टेंसी सर्विसेज से 10 लाख मिला। गिफ्ट मिला 1 लाख। अभी गिफ्ट से रिलेटेड देखो, नहीं नहीं नहीं, एडजस्टमेंट पढ़ो फिर बोलो। हाँ, तो पढ़ना एडजस्टमेंट 3। गिफ्ट रिप्रेजेंट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एलईडी टीवी विच वॉज गिवन बाय द क्लाइंट्स। हाँ, मैंने गिफ्ट से रिलेटेड आपको कितनी बार पॉइंट्स बोला है। अगर एम्प्लॉयर गिफ्ट देता है तो परक्विजिट, और क्लाइंट्स गिफ्ट देते हैं तो पीजीबीपी। इन दोनों को छोड़ के अगर कोई गिफ्ट देता है तो फिर आईओएस में जाना। समझा क्या?
हाँ, एम्प्लॉयर देता है तो सैलरी में जाना, और क्लाइंट्स देते हैं तो वो सेक्शन 28 में कवर्ड है। एनी वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट परक्विजिट्स रिसीव फ्रॉम क्लाइंट्स, इट इज बिजनेस इनकम। अकाउंटेंट ने सही किया है, उसने बिजनेस के पीएनएल को क्रेडिट किया है, ये बिजनेस का ही इनकम है, हमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। इट इज अ करेक्ट एडजस्टमेंट। गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट्स इज योर बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 28। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज 12 लाख, यहां से लेस करो, आईओएस में हम ऐड करेंगे तो हम देखेंगे वहां पे 10 लाख का एग्जाम्शन है, फिर 2 लाख करेंगे, टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, 115 बीबीडीए वगैरह सब आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये यहां से तो लेस करो पहले। हाँ, तो लेस में सेकेंड पॉइंट, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज। ये तुमको लोगों को पता है डोमेस्टिक कंपनी मतलब क्या होती है? इंडियन आ गए, एक होती है फॉरेन कंपनी, नहीं सुनो अभी, एक होती है इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी इज अ, ये सीखा होगा, कंपनी एक्ट में देखा है क्या आपने? ठीक है, ठीक है। इंडियन कंपनी इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट। फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द फॉरेन कंट्री का जो भी कंपनीज एक्ट होगा। डोमेस्टिक कंपनी कैन बी इंडियन एज वेल एज फॉरेन, but it is a company which is making provision for deducting, for paying dividend distribution tax in India. That is why जब टैक्स रेट्स होते हैं ना, ध्यान से सुनना, इनकम टैक्स के जो रेट्स है ना, द रेट्स के वहां पे जब हम बोलते हैं ना कंपनीज के लिए, द रेट्स आर डिफरेंट फॉर डोमेस्टिक कंपनी एंड रेट्स आर डिफरेंट फॉर फॉरेन कंपनी, दैट्स द डिफरेंस। सो व्हाई डू सम फॉरेन कंपनी स्टिल वांट टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर पेइंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इन इंडिया? बिकॉज दे वांट टू गेट द बेनिफिट ऑफ दैट लोअर टैक्स रेट एंड दे विल बिकम कम इनटू द कैटेगरी ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी कैन बी इंडियन एज वेल एज फॉरेन। क्यों बता रही हूँ आपको? एमसीक्यूज के लिए, बराबर है। हाँ सर, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, यहां से 12 लाख लेस करो, आईओएस में देखेंगे क्या करना है। क्यों लेस कर रहे हैं यहां से? बिकॉज इट इज गोइंग टू गेट टैक्स्ड अंडर आईओएस। आगे, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, वो करेक्शन कर देना, उधर 15,000 कर दो। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। नाउ यू नो, ये मैंने दिया, ये 10-15 में एग्जम्प्ट होता है। हाँ, ये आईओएस में हम टैक्स नहीं करेंगे, एग्जम्प्ट होता है इंटरेस्ट, बट यहां से तो पहले लेस करो। बिजनेस वाला इनकम है क्या? नहीं, फिर आईओएस में एग्जम्प्ट है कि टैक्सेबल है, वो आईओएस में जाके देखेंगे, पहले यहां से लेस करो। सो लेस में इंटरेस्ट ऑन सर्टिफिकेट्स issued under gold monetization scheme, यहां से लेस करो, इसको सब आईओएस में कंसिडर करेंगे, बराबर है क्या? डेबिट साइड ओवर, क्रेडिट साइड ओवर, चेक फॉर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट 1 2 3 4 इज ओवर। 5 देखो, फिर से 80 हो सकता है क्या? हाँ, क्योंकि लोन सैंक्शन 16-17 में नहीं हुआ, हाँ 18-19 में हुआ है। अच्छा, लेकिन और एक 2-3 चीजें सुनो। घर का पोजेशन मिला कब मुझे? नेक्स्ट ईयर, बराबर। तो इस साल में एचपी है क्या? नहीं। तो एचपी का वर्किंग होगा क्या? नहीं। मतलब इंटरेस्ट अभी आएगा क्या? नहीं। लेकिन बैंक को देना पड़ेगा क्या? हाँ, इसको बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन। ये नेक्स्ट ईयर 1/5 करके अलाउ होगा। अब एक सवाल दूसरा, क्या आपको ये याद आ रहा है कि एटीसी का डिडक्शन मिलता है फॉर प्रिंसिपल रीपेमेंट? हाँ, वो भी नहीं मिलेगा अभी, because the house is not in existence. So that note I will give you. It's a different kind of an adjustment. So that note I will give you. Do you understand that? तो यहाँ पे हम ATC का डिडक्शन भी फॉर प्रिंसिपल रीपेमेंट भी क्लेम नहीं करेंगे। ओके, तो एडजस्टमेंट नंबर जो 5 है वो हमारे लिए कुछ इम्प्लीकेशन नहीं है उसका यहाँ पे। यस, ना 6th वन, मतलब एक्स पेड, ये 80D का डिडक्शन है, ठीक है। एक मिनट, मतलब पीजीपीपी के सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। हाँ, तो एडलेस कर दो, पहले ये नोट खत्म कर दो। सिंपल क्वेश्चन, 60 70 1285, जस्ट चेक माई कैलकुलेशन। हाँ,
तो बिजनेस इनकम कितना आ रहा है? PGBP 6 lakhs 698,500. एवरीबडी ओके विद दिस? अभी iOS का नोट करें. दिस वॉज ऑल्सो द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1. अगेन नॉट अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, तो ये 16 का मार्क्स का तो पक्का नहीं है, ये 10 मार्क्स के आसपास का होने वाला है. ठीक है. Note 2 iOS. Are you all ready for Note 2 iOS? I'll turn the page. My page is over. Note 2 iOS. First, what is the income under iOS? That the first thing that we think is there. Yeah, first is dividend. Dividend है कितना? 12 लाख. लेकिन exempt कितना होता है? 10 lakhs. 10 lakhs is exempt under which section? 1034. 1034. And about 10 lakhs, that balance is taxable. It comes under, what happened? 1010D is insurance की maturity receipts. Maturity receipts from insurance policy जब वापस आती है, you get it back after the policy matures. That is exempt under 1010D if certain conditions are satisfied. What are the conditions? आपका जो प्रीमियम है should not exceed 10% of the sum assured. हाँ, इसके ऊपर भी पास्ट एग्जाम प्रॉब्लम में आया हुआ है क्वेश्चन. मैंने क्लास के, आप नोटबुक कुछ टेंशन मत लो, मेरे जो क्लास के रेगुलर नोट्स है, फर्स्ट लाइन से लेके लास्ट लाइन तक पूरा खत्म कर दो. यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरीथिंग. डोंट वरी. ठीक है. फॉर फ्री वड़ा पाव शी सेइंग. कम ऑन. सो लेट्स राइट डाउन डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी. अच्छा, डिविडेंड अगर फॉरेन कंपनी होता तो फुल्ली टैक्सेबल. डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी DDT नहीं पे करती, वो डिविडेंड टैक्स नहीं पे करती, तो टैक्स कौन पे करेगा? शेयर होल्डर. समझा क्या? और बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 222E वाला डिविडेंड. उसके ऊपर MCQ या तो iOS में क्वेश्चन 100% आने वाला है. 222E पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का आने वाला है. हाँ, डीम डिविडेंड अंडर 222E जब iOS पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी. इट इज फुल्ली एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी. iOS के टाइम रिवाइज करवा दूंगी. हाँ, iOS में भी इस बार 2-3 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है. चलो, सो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 2 लाख. कैसे 2 लाख लिखा आपने? अप टू 10 lakhs exempt अंडर सेक्शन 1034. सेक्शन याद नहीं आया तो चलेगा. उसके बाद बस इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट ही है. देखो, इंटरेस्ट ऑन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम बॉन्ड्स, गोल्ड मोनेटाइजेशन सिक्योरिटीज. मैं आपको बोलती हूँ, इंटरेस्ट ऑन सर्टन सिक्योरिटीज. सुनो, 10-15 जो सेक्शन रहता ना, जैसे पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स का इंटरेस्ट इज एग्जम्प्ट अप टू 3,500. नेशनल रिलीफ बॉन्ड्स का इंटरेस्ट इज फुल्ली एग्जम्प्ट. गोल्ड मोनेटाइजेशन का इज फुल्ली एग्जम्प्ट. दिस कम्स अंडर सेक्शन 1015. ओके, तो ये है, तो ये फुल्ली एग्जम्प्ट है, तो डैश. तो योर iOS इज गोइंग टू बी ओनली 2 lakhs. And 2 lakhs is special, remember, उसका टैक्स रेट इज गोइंग टू बी स्पेशल. करेक्ट. अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे. प्रॉफिट्स एंड गेन्स राइट डाउन 698,500. iOS लिखो 2 lakhs. पुट एन एस्ट्रिक मार्क हियर, आपको रिमाइंड करने के लिए. इट हैज अ स्पेशल रेट. देन राइट डाउन द टोटल इज कमिंग टू 898,500. अब डिडक्शंस करेंगे. ATC नहीं मिलेगा. कौन सी, किस बात पे हम ATC क्लेम करना चाहते थे? रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल. बट HP इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, सो यू कैन नॉट क्लेम इट. आई विल गिव यू अ नोट ऑन दैट. तो ये अभी हम नहीं क्लेम कर सकते, तो ATC डैश कर दो. इज देयर 80D? पढ़ लो.
ही पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर पेरेंट्स, पेरेंट्स आर सीनियर सिटीजन नॉट डिपेंडेंट, भले ही ना हो, यहाँ नहीं चलता, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एटीडी किसके ऊपर मिलता है, आई विल जस्ट टेल यू, एटीडी इज अवेलेबल फॉर ओन लाइफ, ओन हेल्थ, स्पाउस, चिल्ड्रन यहाँ पे डिपेंडेंट होने चाहिए, एंड पेरेंट्स के आगे डिपेंडेंट वर्ड नहीं है। पेरेंट सीनियर सिटीजन है, यस, सो द लिमिट फॉर पेरेंट्स इज गोइंग टू बी हाउ मच, 50,000, but there is also a preventive, he also paid 8,500 in cash towards preventive health checkup for himself and spouse. preventive health checkup को एक internally limit है 5,000, so though you paid, अच्छा first I paid in cash, तो प्रॉब्लम है क्या, नहीं, सिर्फ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एटीडी में कैश में पे करना अलाउड है, बाकी सारे प्रीमियम एटीडी के कैश में पे किए तो अलाउड नहीं है, बराबर है। स्टूडेंट ये डिडक्शंस का चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू स्कोर वेल इन योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो डिडक्शंस ये जो है एटीसी डीई सारे डिडक्शंस आपको अलग से क्वेश्चन नहीं इस टाइप में आने वाले हैं, तो ये जो कंबाइंड क्वेश्चंस में इस तरह से डिडक्शंस आएंगे। यस प्लीज, यस सबका मिला के 5,000, बट यहाँ पे तुम लोगों ने पेरेंट्स के लिए नहीं है, पेरेंट्स के लिए सिर्फ चेक है, सो सी हाउ आई विल से 27,000 और 50,000 विच एवर इज लोअर, तो ये 27 तो आ ही रहा है, एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैक्सिमम 5,000, मैक्सिमम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, preventive health checkup maximum 5,000, so how much is that coming to 32,000, चलता है ना, अरे ऑफ कोर्स उल्टा नहीं चलता है ना, ऐसा मतलब उल्टे पे क्वेश्चन होना चाहिए, कैश में चल रहा है तो ऑफकोर्स चेक में तो चलेगा ही। क्या समझा मुझे बताओ, पेरेंट्स के लिए आपने प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस का है वो मिलेगा डिडक्शन, फिर आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे पेरेंट्स का तो मिलेगा ही, आपको याद रखना है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, दो इट इज 8,500, कैश में पे किया तो अलाउड है, हाँ अलाउड है, बट मैक्सिमम लिमिट कितना है स्टूडेंट्स 5,000, तो इसलिए 27 ऊपर का ये 5,000 करके 32 आ रहा है, करेक्ट। बोल बोल, आज स्माइल टेल यू, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, यस, क्या नहीं मिलेगा, डिडक्शन मैक्सिमम 5,000 मिलता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का लिमिट कितना है 5,000, तो 5 ही मिलेगा ना, यू पे 8,500, यू पे 18,500, यू विल गेट ओनली अप टू 5,000, ओके। 80 यहाँ पे नहीं है क्योंकि लोन गॉट सैंक्शन ड्यूरिंग FY 18-19, ओके, तो उसका नोट दे दूंगी चाहिए तो हो गया। टैक्स के लिए एनटीआई बताओ कितना आ रहा है, 866,500, नो राउंडिंग ऑफ रिक्वायर्ड हियर। टैक्स का तुम लोग वर्किंग करोगे, स्पेशल रेट और नॉर्मल रेट है, 10, 115 BBDA के हिसाब से 10%, करें साथ में करते चलो। नोट 3, यहाँ पे नोट 3 टैक्स का, Note 3 tax working. Now what is there in the tax working? Let's see. $866,500 में से स्पेशल रेट, दिस इज टैक्स अंडर सेक्शन 115 BBDA एट व्हाट रेट, 10%, 20,000 टैक्स आएगा, बैलेंस एट नॉर्मल रेट्स, $666,500, so find out the tax on this, यहाँ पे टैक्स है 20, $45,800 है क्या, ये 45,800 है, सो टोटल टैक्स
65,800 बराबर आ रहा है क्या? करो 65,800 प्लस सेस वगैरह ऐड कर दो, हो गया ये नोट। 115 BBDA के हिसाब से अप टू 10 lakhs, रिमेंबर इट्स इनकम इज एग्जाम्ड अंडर 1034। बचा हुआ बैलेंस जो भी है इट विल गेट टैक्स एट अ फ्लैट रेट ऑफ 10%। याद रखना, इसके 2 लाख के अगेंस्ट कोई खर्चा लेस नहीं कर सकते, कोई सेट ऑफ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, डायरेक्टली इस 2 lakhs पे 10% टैक्स गवर्नमेंट को चाहिए। एड health and education says don't use short forms in the exam. 4%, 2004, 4 मतलब 20, 32, so 2632। नोट्स देने एक दो मुझे, मैं दे दूंगी आपको अभी। 60, 32, 4178, 68,432 rounded off as 68,430. Is that correct? देख लो। Again, this is an exam question only. नवंबर 17 का क्वेश्चन है, फिर और एक है मई 17 का करेंगे। दो नोट्स देती हूँ। Are you all ready? Yeah. Write down. No 80EE डिडक्शन। कौन से सेक्शन की बात कर रही हूँ? 80EE। No 80EE डिडक्शन as the loan is sanctioned during FY 18-19. As the loan is sanctioned during FY 18-19. As the loan is sanctioned during FY 18-19. For 80EE, the loans should be sanctioned in. Check कर. For 80EE. पक्का है क्या? For section 80EE, the loan should be sanctioned in FY 16-17. बराबर है? It should be sanctioned in FY 16-17. ओके? नहीं, 80 डिडक्शन के लिए ई में ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, वो ले सकते। आगे 80C का लिखो। नो 80C डिडक्शन। नो 80C डिडक्शन फॉर प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। नो 80C डिडक्शन फॉर प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। For principal repayment of housing loan. For principal repayment of housing loan, because the property comes into existence in the next year. Because the property comes into existence in the next year. Because the property comes into existence in the next year. The property comes into existence in the next year. Done? इसमें कोई query वगैरह कुछ है? नहीं? Let's move ahead to the next question. Question next. X 50 years वाला question 11 है मेरे यहाँ नंबर उसका। Should we read it together? Come on. Mr. X 50 years, a resident individual, provides the following information for financial year 18-19.
She is a partner in AK and Company and gets the following from the firm. She gets share of profit from the firm 35,000, interest on capital at 15% per annum 3 lakhs, salary as a working partner fully allowed in the hands of the firm 1 lakh. She is a proprietor of a rice mill. Net profit as per profit and loss account is 4,50,000. The following items are debited to profit and loss account. Advance income tax paid, personal drawings. The following items are credited to the profit and loss account. Interest on savings bank account with SBI, interest on savings account with post office, dividend from a listed company, Indian company, dividend distribution tax paid, and kitna dividend mila? 80,000. She owns a house property in Mumbai which is transferred in January 2017. She received, which is transferred in January 2017 मतलब उसने बेच दिया. कब बेचा? जनवरी 17, मतलब उस साल में कैपिटल गेन का वर्किंग हो चुका होगा. अभी हमें नहीं कुछ लेना देना उसका. घर उसने 2017 में बेच दिया. She receives 90,000 by way of arrears of rent in respect of the said property in October 2018. She makes the following investments. कुछ LIC वगैरह है. LIC premium on a policy in the name of a married daughter 60,000. The policy was taken on 1st October 2014. Sum assured is 5 lakhs. Health insurance premium on a policy covering her mother aged 75. She is not dependent on Mrs. X. Premium paid by check is 35,000. Compute the total income and tax liability of Miss X for AY 1920. Okay. So May 2017 का ये again I think it should be the first question only, right? तो आप एक बार स्टडी प्लानिंग कर लो, क्या क्या हेड्स ऑफ इनकम है, क्या करना पड़ेगा अपने को, अच्छे से सोचो. थिंकिंग करके तैयार हो आप लोग? टेल योर सेल्फ इन द एग्जाम लाइक अ स्टोरी. क्या हो रहा है? व्हाट इज मिक्स एक्स हैविंग? ओ शी हैड अ हाउस, शी सोल्ड इट. अच्छा, फिर गेन अभी नहीं आएगा, बराबर. कितने हेड्स ऑफ इनकम आएंगे आपके हिसाब से? देयर विल बी 3 हेड्स ऑफ इनकम. और हाउस प्रॉपर्टी, एरियर्स ऑफ रेंट मिला तो एरियर्स ऑफ रेंट इज टैक्सेबल अंडर एचपी. घर बेच दिया तो भी वो कौन से हेड में टैक्सेबल होता है? एचपी. सो देयर आर गोइंग टू बी हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम? 3 हेड्स ऑफ इनकम. करेक्ट? यस. सो लेट्स राइट डाउन. जो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन होता है वही आपका हेडिंग करने का. कम ऑन. सो लेट्स सॉल्व इट. क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 11 in my notes. Yeah. So computation of tax liability पूछा है ना? Yeah, students, this is the compulsory question. ये question 1 ही है. compulsory question वाला ही दिया है मैंने सब. So computation of tax liability of X for AY 1920. Preferably सीक्वेंस में हेड्स ऑफ इनकम लिखना. ओके. पहले सैलरी फिर एचपी. वैसा नहीं हुआ तो कोई मार्क्स नहीं कटने वाले, टेंशन मत लेना उसका. हाँ. इनकम फ्रॉम एचपी नोट 1. प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड ये सैलरी में है ना? नहीं है, नहीं है.
पार्टनर को सैलरी मिल रही है, वो किधर जाती है, पीजीबीपी। क्यों, सेक्शन 28। हाँ, और सेक्शन 28 में दिया है स्पेसिफिकली, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है, करेक्ट। तो पीजीबीपी नोट 2, आईओएस नोट 3, जीटीआई, leave some space for chapter 6 deduction. NTI, and then tax. Leave the space. Next page, I'll write down note 1, income from HP. Note 1, income from HP. Now, what is there in income from HP? Arrears of rent. Arrears of rent is taxed in the year of receipt. कब मिला? October 18. October 18 मतलब during this year. Correct. So write down arrears of rent. कितना है रे arrears of rent? 90. क्या करेंगे इसमें से, क्या लेस होता है? 30% स्टैंडर्ड। एक्चुअल खर्चा जानबूझ के दिया तो कंफ्यूज मत होना, हाँ, वो लेस मत करना, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। $63 ना, ये एचपी इनकम है। अच्छा, फिर भी घर बेच दिया फिर भी एचपी में आता है क्या? हाँ, सारे थ्योरी वाइज तो सिखाया हुआ है सारे कंसेप्ट आपको। नोट 2, पीजीबीपी। 2 मिनट सोचना, कुछ दिया है क्या मेथड ऑफ अकाउंटिंग के लिए? नहीं, तो नॉर्मली क्या अजम्पशन करने का? मर्केंटाइल। अच्छा, कुछ प्रिजम्पटिव बेसिस का वगैरह लग रहा है कि आपने को क्या दिया है? नहीं, क्योंकि वी डोंट नो द सेल्स वगैरह दिया ही नहीं है, डायरेक्टली एनपी और क्या डेबिट क्रेडिट, तो कुछ उस इसमें नहीं पढ़ना है, डायरेक्टली जैसा है वैसा वर्किंग करना है अपने को, करेक्ट। तो पर्टिकुलर्स 2 कॉलम्स, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। स्टूडेंट्स, इतने डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन। नहीं याद आया? तू नहीं थी ना अभी रिवीजन में? ठीक है, आ जाएगा, व्हेन यू स्टडी यू विल रिमेंबर, है ना। ओके, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितना है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? 4,50,000। ये कौन से, बाय द वे बताना, ये पीजीपी, ये जो हम वर्किंग कर रहे हैं कौन से बिजनेस के लिए कर रहे हैं? राइस मिल वाला, उसमें प्लस उसका बाकी का सैलरी इंटरेस्ट फर्म से वो भी ऐड होगा, हाँ। तो इनफैक्ट यहाँ पे आगे आप ये लिख सकते हो, पहले हम ये किसका वर्किंग कर रहे हैं? राइस मिल। सो 2 मिनट सोचने का। अच्छा, बिजनेस में कितने कितने सोर्सेज ऑफ बिजनेस है? अच्छा, एक राइस मिल है, इज शी हैविंग एनी अदर इनकम? थिंक लाइक दैट फर्स्ट एंड देन गो अहेड एंड स्टार्ट सॉल्विंग इन द एग्जाम, ठीक है। पता आपको सब होता है, वहां स्ट्राइक होना जरूरी होता है एग्जाम हॉल में। ठीक है, चलो। सो एडजस्टमेंट्स देखो, फॉलोइंग हैव बीन डेबिटेड टू हर P&L। एडवांस इनकम टैक्स, इज दिस अलाउेबल? नो, नॉट अलाउेबल, तो ऐड बैक करो। ऐड, किसी को सेक्शन याद आ रहा है? हाँ, 40A, करेक्ट। इनकम टैक्स वाला 40A और TDS वाला, है ना? 40A कितना है? 1 लाख। पर्सनल ड्रॉइंग्स
not allowed, that is 50,000. Then the following items are credited to profit and loss account. Credited मतलब इनकम वाली साइड के हिसाब से सोचना है. इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट विथ एसबीआई, यहां से लेस करो और कहां ऐड करो, आईओएस. एक चीज समझना स्टूडेंट्स, एग्जम्पशन और डिडक्शन का डिफरेंस समझना. हाँ, जब मैं आपको आईओएस करूंगी तो पता है, जब वो एसबीआई वाला इंटरेस्ट ना मैं पूरा लिखूंगी. क्यों? क्योंकि उसका डिडक्शन मिलता है. डिडक्शन कम्स एट विच पॉइंट? एट आफ्टर जीटीआई. एंड पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट देखो कितना है, 5,000, लेकिन हम लिखते वक्त कितना लिखेंगे, 1,500. क्यों? क्योंकि वहां पे एग्जम्पशन है. एग्जम्प्ट वाला इनकम इज नेवर कंसिडर्ड इन द जीटीआई एट ऑल. अंडरस्टैंड दिस बेसिक डिफरेंस. अगर डिडक्शन है तो डिडक्शन के पॉइंट पे क्लेम करना, मतलब जीटीआई में उसको ऐड करना पड़ेगा, बाद में डिडक्शन लेना पड़ेगा. समझ में आ रहा है सबको? एग्जम्पशन और डिडक्शन का एक डिफरेंस होता है. एग्जम्पशन इज नेवर कंसिडर्ड इन कॉम्प्यूटेशन, बट यू कुड गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस, बट अ डिडक्शन इज कंसिडर्ड इन द कॉम्प्यूटेशन एंड लेटर ऑन अ डिडक्शन हैज बीन क्लेम्ड. ठीक है. चलो, तो इसमें लेस करना पड़ेगा अपने को. इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स, ये सारा तीनों लेस करना पड़ेगा. ये सब कहाँ जाएगा? आईओएस में, राइट? सो लेस फर्स्ट इन दैट. इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट, क्यों लेस कर रहे हैं हम लोग? यस, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ आईओएस. दूसरा, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स, पोस्ट ऑफिस वाला, ये भी यहां से लेस करेंगे. क्यों? टैक्सेबल अंडर आईओएस. तीसरा, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, इसको सीधा बोल दो क्यों लेस कर रहे हैं? बिकॉज इट्स एग्जम्प्ट. वी ऑल नो ना, डिविडेंड इनकम इज एग्जम्प्ट अप टू 10 lakhs. क्या हो गया बोलना, पूछना नहीं? ठीक है. डिविडेंड इनकम इज एग्जम्प्ट अप टू 10 lakhs. ओके. सो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी क्यों लेस कर रहे हैं? बिकॉज इट इज एग्जम्प्ट अप टू 10 lakhs अंडर सेक्शन 1034. तो यहां से लेस करो. तो आई थिंक ये वाला पीजीबीपी में इतना ही है, राइस मिल वाले में इतना ही है, बराबर? अच्छा सुनो, यहाँ पे और एक एडजस्टमेंट फिर आ सकता है. शी हैड लास्ट ईयर्स ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस. तो पहले बिजनेस इनकम कंप्यूट करने का, फिर उसके अगेन सेट ऑफ करने का, ये जो कंबाइंड क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे इस टाइप की एडजस्टमेंट आती है. या हस्बैंड गेव 2 lakhs टू वाइफ ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट हस्बैंड के हैंड में ऐड करने का, फिर पूरा कॉम्पिटिशन करने का. डू यू अंडरस्टैंड? सो इन कंबाइंड क्वेश्चन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. क्लबिंग, सेट ऑफ कैन ऑल्सो कम इन. ठीक है. आई एम नॉट, मैं डरा नहीं रही हूं, आई एम प्रिपेयरिंग यू. हाँ, तुम लोग अच्छे मार्क्स लेके आओगे, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. ओके, यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल and you all are remembering much better than I am expecting, so you all are doing very well. चलो निकालो. बिजनेस इनकम फ्रॉम राइस मिल. एग्जाम हॉल में क्या इंपॉर्टेंट है? एटीट्यूड एंड नॉट एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड इज योर इंटेलिजेंस. दैट 3 hours it's not important. एटीट्यूड इज इंपॉर्टेंट. ओके. तो कैसे सॉल्व करने का? वट एवर आई एम डूइंग इज एब्सोल्यूटली करेक्ट, ऐसे कॉन्फिडेंस से सॉल्व करके आने का. ठीक है. हाँ, गलत हुआ तो आईसीआई का प्रॉब्लम है, अपना नहीं है. अपन एकदम करेक्ट करके आएंगे सब कुछ. बता आंसर, कैलकुलेट कर, बता. 8 लाख? हाँ, 8 कैसे, 4.5, कहीं ऐसे अमाउंट ही नहीं है. 8 लाख तो लग ही नहीं रहा है मुझे टोटल आएगा. 5,03,000. और क्या है?
हाँ, तो ये वाला बिजनेस राइस मिल का, और उसका फर्म से भी इनकम है ना। नाउ बिजनेस इनकम, तो यहाँ पे ए कर देते हैं, नोट 2 में ए और बी कर देते हैं। हाँ, बी वी विल से बिजनेस इनकम फ्रॉम फर्म, एंड दोनों का टोटल करेंगे फिर। बिजनेस इनकम फ्रॉम फर्म, बता दो कितना आएगा। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? क्यों एग्जम्प्ट होता है? हु पेज टैक्स ऑन दैट? फर्म। सो इट इज एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स। शेयर ऑफ प्रॉफिट के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है अमाउंट? हाँ, 3 lakhs नहीं लिखना है। कितना अलाउेबल होता है फर्म को? 12%। जितना फर्म को अलाउेबल उतना ही पार्टनर का टैक्सेबल। फर्म्स एक्सपेंडिचर इज पार्टनर्स इनकम। फर्म को एक्सपेंडिचर अलाउ होते वक्त 15% नहीं अलाउ होगा, कितना अलाउ होगा? 12%। सो यू हैव टू फाइंड आउट 3 lakhs इज द इंटरेस्ट व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15, तो 12% के लिए कितना? हाँ, तो इधर सिर्फ 240 आएगा फिर। क्या हुआ बता ना। नहीं 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 नहीं, सुन सुन, मैं बताती हूँ। उसका क्वेश्चन है टैक्स तो पूरा 15 पे मिलना चाहिए। अभी सुनना, एक्स के अकाउंट में जमा कितना होगा? 3 lakhs। हाँ, एक्स को मिलेगा कितना? 3 lakhs। बट जब हम फर्म का वर्किंग करेंगे ना, फर्म ने खर्चा क्लेम किया, कितना रहेगा? दे वांट टू क्लेम खर्चा ऑफ 3 lakhs, बट यू टेल हिम सॉरी, allowable will be only 240. So how much will be disallowable? डिसअलावेबल मतलब तू क्या करेगा? फर्म के इनकम में ऐड करेगा। तो 60,000 पे टैक्स कौन पे करेगा? फर्म, एज अ पनिशमेंट फॉर नॉट फॉलोइंग इनकम टैक्स एक्ट। बराबर। टोटल कितना इनकम है? 3। तो पार्टनर को बोलते डबल टैक्सेशन नहीं चाहिए, तो पार्टनर को बोलेंगे यू पे टैक्स ओनली ऑन 240। तो पार्टनर विल पे टैक्स ऑन 240 and firm will pay tax on 60. So in short, डिपार्टमेंट सेज, गवर्नमेंट सेज हमको 3 लाख पे टैक्स मिल गया, फर्म को पनिशमेंट दिया हमने। समझा? इसीलिए हम बोलते फर्म का अलाउेबल एक्सपेंडिचर इज पार्टनर्स टैक्सेबल इनकम, मतलब 240। समझा क्या? पक्का? चलो। तो इधर 240 आ गया। थर्ड क्या है रे? सैलरी फ्रॉम फर्म, वर्किंग पार्टनर। कितना है सैलरी? 1 लाख। तो ये इनकम हो गया 340। बराबर क्या? ए और बी का टोटल ले लो। ऑलवेज रिमेंबर, फर्म्स अलाउेबल एक्सपेंडिचर इज पार्टनर्स टैक्सेबल इनकम। एक्स को 3 लाख मिला, फिर भी वो टैक्स कितने पे करता है? ही पेज टैक्स ओनली ऑन 240 बिकॉज फर्म के हैंड्स में 60 डिसअलाउेबल, उसके इनकम में ऐड होगा, फर्म विल पे द टैक्स। ओके, दिस वाज दैट जस्ट एक्सप्लेनेशन। सो पीजीबीपी अपना कितना आ रहा है यहाँ पे? ए प्लस बी मिला के 8,40,000। बोलना। नहीं, खुद को नहीं, फर्म इज अ सेपरेट एंटिटी, फर्म फाइल्स अ सेपरेट रिटर्न, इट्स नॉट नोशनल। If I pay it on my proprietor's capital account, then it's notional. Firm is a separate entity. Partners are a separate entity. Firm has a separate identification in Income Tax Act. It has a separate PAN. हाँ, अगर खुद के प्रोप्राइटर के कैपिटल पे होगा तो डिसअलाउ होगा। तो 843 आ गया क्या तुम्हारा? अब iOS बचा है ना सिर्फ, नोट 3 बचा ना। हाँ चलो करो, नोट 3 iOS। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट, how much is that? 12।
इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट 5,000 है, लेकिन उसमें से कितना एग्जम्प्ट है 3,500। ये भी एग्जम्पशन अगर आपको याद आया तो इट इज अंडर सेक्शन 1015, तो 1,500। एंड डिविडेंड इज एग्जम्प्ट। $13,500 is iOS। करेक्ट है क्या? करे सब्स्टिट्यूशन। Done? Let's substitute. Income from HP 63, PGBP 843, and iOS 13,500. एक पार्ट अच्छे से हो गया अभी आपका। अभी डिडक्शंस पे ध्यान देना, मतलब एंड तक पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब अच्छे से डिडक्शंस देख लो। LIC प्रीमियम paid for a married daughter. Does that matter? She is married or not married? No. You will get. LIC is for whom? Own life, spouse and children. मैंने आपको क्या बोला? जैसे जैसे डिडक्शंस आगे बढ़ते जाते हैं फैमिली की डेफिनेशन बड़ी होती जाती है। 80D में पेरेंट्स ऐड हो गए, फिर आगे डिपेंडेंट हैंडीकैप के लिए ब्रदर सिस्टर भी ऐड हो जाते हैं। कीप दैट इन माइंड। हैंडीकैप डिपेंडेंट में कौन कौन कवर है? ओन है, स्पाउस है, चिल्ड्रन है, पेरेंट्स है, ब्रदर है और सिस्टर है। ठीक है। 80C से स्टार्ट होता है, दैट इज ओनली यू, योर वाइफ एंड स्पाउस एंड चिल्ड्रन। ठीक है। सो हियर 80C कितना मिलेगा देख लो। हाँ, अच्छा डेट क्यों दिया है आपने को जरा बताना मुझे। वाई इज द पॉलिसी टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2014? ये डेट क्यों दिया है? टू चेक वेदर द लिमिट इज 10% और 20%। इफ द पॉलिसी इज अ पुराना पॉलिसी before 1st April 2012, then the limit was 20%. Then the limit was how much? 20% of sum assured. Okay, here the limit is 10%. अच्छा डेट दिया ही नहीं हो एग्जाम में तो अज्यूम करना लेटेस्ट पॉलिसी है, 10% वाला है। ठीक है। हाँ, तो 80C प्रीमियम कितना है? 60,000 और 10% of 5 lakhs, that is sum assured, दोनों में से whichever is lower, so obviously it is 50,000. हेल्थ प्रीमियम फॉर मदर 80D, में कितना आएगा? कितना खर्चा किया? 35। सीनियर सिटीजन है क्या? 35 और 50,000। दिस इज एन अमेंडमेंट स्टूडेंट्स फॉर AY 1920। सीनियर सिटीजन का लिमिट हैज नाउ बीन गॉन अप टू 50,000। 30 के आसपास था, 25 और 30, 5,000 एक्स्ट्रा मिलता था, अभी डायरेक्टली 50,000 हो गया AY 1920 में। तो दिस इज 35। हो गया? हो गया ना? हाँ हो गया। ATTTA बिल्कुल नहीं भूलना है। हाँ, पूरा 13,500 इज एलिजिबल फॉर ATTTA। सो विल से 13,500 और 10,000 whichever is lower। ATTTA is not now AY 1920 से ATTTA is not available to a senior citizen, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए अलग सेक्शन आ गया है ATTTB। ठीक है। तो यहाँ पे ATTTA तो पक्का ही मिलेगा, तो ATTTA सेविंग्स वाला इंटरेस्ट पूरा एलिजिबल होता है।
तो 13,500, यहाँ पे iOS दोनों ही जो अमाउंट है 13,500 इट इज इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स, बट मैक्सिमम इज 10,000, दोनों में से विच एवर इज लोअर, तो 10,000 मिलता है. इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट इज एलिजिबल. वीव डन अ क्वेश्चन ऑल्सो दैट वे एंड डन इट. मिलता है. तो एनटीआई बताना जरा. 8 लाख 824,500. टैक्स में कोई स्पेशल रेट है क्या? नहीं, तो कैलकुलेट टैक्स नॉर्मल. टैक्स का वर्किंग नहीं आएगा फिर. टैक्स इज हाउ मच? 400. No special rate. At 4% health and education cess. 3096. Good. 80,496. I'll have to round it off. Tax liabilities rounded off under section 288B. तो 80,500 आएगा ना. कोई प्रॉब्लम? करें. गो अहेड टू द नेक्स्ट 2 questions. These are there in my notes, but मॉड्यूल में भी है, कुछ अलग एडजस्टमेंट्स है, तो आई थॉट वील डू दीज 2 ऑल्सो. ओके. 5 हेड्स आर इंपॉर्टेंट ना, आपको फोकस करना चाहिए 5 हेड्स पे. चलो, तो करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. शिवम वाला क्वेश्चन. या विल यू जस्ट रीड द क्वेश्चन प्लीज. एक बार क्वेश्चन पढ़ लो. शिवम वाला जो क्वेश्चन है, इट्स क्वेश्चन नंबर 12 हियर. तो शिवम का क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से. करें. इंस्ट्रक्शन अंडरलाइन किया क्या? क्या निकालना है बताओगे जरा.
टीजीबीपी, और उन्होंने हिंट भी दे दिया है कि प्रिजम्पटिव में भी निकालना है, नहीं दिया होता तो खुद से करना पड़ता। और पता है फिर आप 8% से करना, नहीं नहीं यहाँ दिया है क्वेश्चन में, अगर ये डेटा वो लाइन मिसिंग होता कि ही गॉट एवरीथिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, तो आप 8% लेते अगर एग्जाम में, तो एक नोट लिख देना that in case he got money by all digital form and ECS के through, then we would calculate presumptive basis का profit at 6%, ऐसे, ठीक है। कहीं नहीं दिया है तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा ना कुछ तो, ठीक है। सो लेट्स राइट डाउन computation of business income of Mr. Shivam. So we know there are two ways. So first we'll say as per books of accounts के हिसाब से निकालेंगे, as per normal provisions of the act. Give a heading. Underline. So if it is as per normal provision means it is particulars, two columns, inner column and outer column. Net profit as per profit and loss account. Is 50,000. Always in P&L start with net profit, go to the debit side, then the credit side, see if any adjustments are remaining. Are you all ready? So let's start. Opening stock, is there any adjustment? Yes. It was found that some stocks were omitted to be included in both opening and closing, the values of which are as follows. Opening stock 9,000 का omit हो गया. Opening stock कौन से side पे आता है? Debit, so it behaves like expenditure. Closing stock comes on the credit side, it behaves like a income. तो accountant ने opening stock omit कर दिया 9,000 का, मतलब खर्चा ही नहीं रिकॉर्ड किया. तो अब रिकॉर्ड करो, क्या खर्चा, खर्चे से प्रॉफिट कम होता है, so less करना पड़ेगा. So add के लिए you can just leave some 7-8 lines and then say less. Omission of opening stock. Omission of opening stock कितना है? 9,000. Inner column. Two purchases 1 crore 10. Any adjustment? No. Huh? No. To GP, no problem. To salary. Salary includes 10,000 paid to brother, which is unreasonable to the extent of 2,000. So that 2,000 will be disallowed. Section याद आ रहा है क्या? Correct. पहले 48 to relatives, फिर cash. Yes. Salary to brother. Disallowed. Under section 40A2, क्यों disallow कर रहे हो? Because it is unreasonable. Unreasonable. कितना है वो? 2,000. Inner column. बाद में सैलरी हो गया. रेंट एंड रेट्स, एनी एडजस्टमेंट? रेंट एंड रेट्स, yes. Fifth point, rent and rates. Fifth point, rent and rates includes sales tax liability of 3,400 paid on 7th April 2019. क्या है ये? क्या है ये? पहले क्या स्ट्राइक हो रहा है? 43B, 7 expenses allowed on payment basis. हाँ, इसको पेमेंट का इधर इसका ड्यू डेट जुलाई हो सकता है या सितंबर हो सकता है.
इसने दोनों के अंदर ही पे कर दिया है, अप्रैल के अंदर. सो इज इट एन अलावेबल एक्सपेंडिचर? यस, इसी साल में अलावेबल है. तो पीएनएल को डेबिट होना चाहिए. हाँ, डेबिट किया क्या अकाउंटेंट ने? हाँ, तो सही किया. देन यू वुड हैव टू अज्यूम द ड्यू डेट. नहीं 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 नहीं, हाँ इस बार. हाँ, तो अगेन वील हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देन सी कि आप प्रिजम्पटिव ऑप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. अगर प्रिजम्पटिव ऑप्ट करते हो तो ड्यू डेट क्या होगा? 31 जुलाई. और प्रिजम्पटिव ऑप्ट नहीं करते तो ड्यू डेट हो जाता 30 सितंबर, है ना. तो दे हैव नॉट गिवन दैट कॉम्प्लिकेटेड, बट दे कैन, इट कैन कम. ठीक है. हाँ ठीक है. क्या क्या समझा? ये विद इन, अभी अप्रैल है तो जुलाई के भी ड्यू डेट के अंदर और सितंबर के ड्यू डेट के भी अंदर. सो इट इज एन अलावेबल एक्सपेंडिचर. बराबर है. सी, वही एग्जाम हमने क्लास में किया हुआ प्रॉब्लम आप खुद से अभी सेकेंड टाइम कर रहे हो. योर अंडरस्टैंडिंग इज मच बेटर. यू आर अंडरस्टैंडिंग इट कंसेप्चुअली मच बेटर नाउ, है ना. चलो, तो अलावेबल है तो कुछ नहीं करना है. नो एडजस्टमेंट फॉर दैट. इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई एडजस्टमेंट है क्या? है कोई एडजस्टमेंट? नहीं दिख रहा है तो अलावेबल है. सो मेक नॉर्मल assumption that it must have been paid and all. Don't make abnormal assumptions. Assume that it is paid, no problem. डेप्रिसिएशन आपको वर्किंग करना पड़ेगा. डेप्रिसिएशन का WDV वगैरह कुछ डेटा दिया है, निकालो डेप्रिसिएशन. चलो, लीव सम स्पेस. निकाल दिया आपने? अरे फास्ट बताओ कैसे निकाला मुझे. डेप्रिसिएशन ओपनिंग कितना है? 4,20,000. प्लांट एंड मशीनरी 15%, ये ओपनिंग है. एडिशंस 70. 1 जुलाई को है तो कोई एस्ट्रिक मार्क नहीं है. लेस सेल कंसिडरेशन. तो क्लोजिंग बैलेंस 440 ना. एंड डेप्रिसिएशन एट 15%. $66. तो इनकम टैक्स के हिसाब से अलावेबल कितना है? 66. अकाउंटेंट तुमने क्या किया? ओ 1,05,000 डेबिट कर दिया. कितना ज्यादा डेबिट कर दिया? 34 and 5 39,000. करेक्ट ना. 39 ज्यादा डेबिट कर दिया. प्रॉफिट गलती से कम हो गया. रेक्टिफाई करने के लिए ऐड करो. करूँ ना मैं? ये वर्किंग हो गया ना. ऐड में एक्सेस डेप्रिसिएशन. कैसे एक्सेस आया? आपने अलाउ किया 1,05,000 बट अलावेबल है 66,000. so that is 39,000. करेक्ट है. इसके लिए नोट बनाया क्या आपने? हाँ नोट. अच्छा, एग्जाम में क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल नोट बनाना पड़ेगा, कंपलसरी. डोंट डू इट ऑन अ कैल्सियन. एग्जामिनर बोलेगा ये कहाँ से आया फिगर. डोंट डू दैट. हर एक वर्किंग नोट दिखाना इज अ पार्ट ऑफ आंसर. ऐसा इंस्ट्रक्शन होता है आपको क्वेश्चन के ऊपर. समझा ना. और आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे क्या? नहीं करना नहीं है. क्लियर इंस्ट्रक्शन है. हाँ, ओनली द फर्स्ट इन द सीक्वेंस विल बी टेकन. देन माइट एज वेल चूज प्रॉपरली. और अगर आपको टाइम है सब कर दिया फिर आप बोलते हो कि कौन सा, तो जो नहीं चाहिए उसको कट कर दो. इफ यू से दैट आई विल सॉल्व ऑल एंड आई विल गेट बेस्ट ऑफ द 5, ऐसा नहीं है. समझा क्या? हाँ, यू शुड नो दीज थिंग्स. कम ऑन आगे. प्रिंटिंग स्टेशनरी. प्रिंटिंग स्टेशनरी में कोई एडजस्टमेंट है क्या? क्या है? कैश में पे किया. वन टाइम पेमेंट. ओ कंप्लीटली क्या? ओ 23,200 डिसअलाउ. हाँ 48,3 करेक्ट. $48,3 कितना रे? 23,200. आगे.
पोस्टेज टेलीग्राम, नो प्रॉब्लम. लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स, शॉर्ट टर्म, तो ये एक्चुअली कैपिटल गेन्स में जाना चाहिए. यहां से लेस करो और कैपिटल गेन्स में ऐड करते, लेकिन हमको पूरा वैसे भी क्वेश्चन पूछा नहीं है. वी हैव टू जस्ट डू बिजनेस वाला वर्क. करेक्ट. डेबिटेड है तो यहां से लेस करो कि ऐड करो? ऐड करो. करेक्ट. अकाउंटेंट ने डेबिट किया है, जो ये बिजनेस रिलेटेड कोई लॉस नहीं है, ठीक है, तो यहां पे ऐड करना पड़ेगा. लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स 8,100. इज दैट क्लियर? आगे टू अदर जनरल एक्सपेंसेस. Other general expenses include 2,000 paid as donation to a public charitable trust. बिजनेस खर्चा है क्या? नहीं. डिडक्शन मिलेगा ये अलग बात है, बट बिजनेस वाला खर्चा है क्या? बिल्कुल नहीं. तो इसको डिसअलाउ करना पड़ेगा. सो एड डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट. हाँ, डिडक्शन पक्का मिलेगा, बट इस क्वेश्चन में हम नहीं कर रहे हैं, नहीं तो 80G करते कैलकुलेट. डेबिट साइड हो गया. कम टू क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड में सेल्स होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो आपको बताता है कि आप प्रिजम्पटिव बेसिस में आओगे या नहीं आओगे. तो यहाँ पे तो ऑफकोर्स आप 2 करोड़ तक ही है, तो आप प्रिजम्पटिव में आने वाले हो. इनकम फ्रॉम यूटीआई इज एग्जम्प्ट. हाँ, इनकम फ्रॉम यूटीआई इज एग्जम्प्ट. तो पहले तो यहाँ से लेस करो, और क्योंकि ये एग्जम्प्ट है हम कहीं पे भी ऐड नहीं करेंगे, ये एग्जम्प्ट इनकम है. ठीक है, तो लेस में लिखो इनकम फ्रॉम यूटीआई. क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट है. हाँ, क्लोजिंग स्टॉक हैज बीन ओमिटेड. कितना ओमिशन हुआ? 18,000. क्लोजिंग स्टॉक बिहेव्स लाइक इनकम. 18,000 का इनकम ओमिट हो गया. अब रिकॉर्ड करो. क्या रिकॉर्ड करना है? इनकम. इनकम से प्रॉफिट बढ़ता है, इसलिए ऐड ओमिशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. ओ सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी. यस, यहां नहीं डैश करना है, वो iOS में डैश करना है. हाँ, तुम लोगों ने भी डैश किया क्या? फिर करेक्ट मेरे को क्यों नहीं बताया? देखा ही नहीं. 2,400 तूने डैश किया? देखा नहीं था. ठीक है, 2,400 किया क्या सबने? लिखा वहां पे. हाँ, आगे क्लोजिंग स्टॉक हो गया 9. मैं लिख रही हूँ. हाँ, ओमिशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितने अमाउंट का है? हाँ, ये एग्जम्प्ट इनकम है, इसलिए हम लेस कर रहे हैं. अकाउंटेंट ने ऑलरेडी पीएनएल को क्रेडिट कर दिया यूटीआई वाला इनकम, जो सही नहीं है. आगे हो गए सारे एडजस्टमेंट्स क्या? कौन सा एडजस्टमेंट बचा है क्या? 1 2 3 ऑल ओवर 4 5. यस. बिजनेस इनकम 1,30,900. ओके विद दिस? क्यों रे, तेरा क्या हुआ? कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही है आज. देख लो. ओके क्या सबको? बी वाला करूं एज पर 44 AD प्रिजम्पटिव बेसिस, राइट? सो इनकम एज पर 44 AD कितना होगा इनकम? 6% ऑफ 1 crore 12,11,500.
672, अरे बहुत डिफरेंस है ना। क्या एडवाइस करोगे? नॉट टू ऑप्ट, करेक्ट। डिक्लेयर profit, lower profit as per books, then maintain books of accounts and get them tax audited, correct. So write down conclusion यहाँ पे। अच्छा, of course, why are you taking 6%? हाँ, so you will have to write that note कि you are taking 6%, तो आपको नोट लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ, दिया है, फिर भी बोल दो ना कि एग्जामिनर को बता दो ना क्या होता है उसमें, कि 6% हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डिजिटल फॉर्म में पैसे आ गए। दैट्स ऑल, जस्ट मेंशन दैट। डन। तो कंक्लूजन क्या है अपना? इट इज बेनिफिशियल फॉर असेसी टू डिक्लेयर प्रॉफिट एज पर बुक्स, राइट डाउन, आई एम डिक्टेटिंग। It is beneficial for assessee to declare lower profit as per books. It is beneficial for the assessee to declare lower profit as per books. As per books, that is 1,30,900. 1,30,900. Correct? Then assessee will have to maintain books and get them tax audit. Will have to maintain books and get them tax audit. Done it? Anybody having any problem? No? Next question. Correct. Next question solve. Are you all ready? Come on. Good going, good speed. Every minute of yours should be utilized now. Come on. So please read the next question. That is Raju, a manufacturer. Both these questions are module questions. We have done them, but just have a look at it. इधर टोटल इनकम बोला है, देखते हैं हम टैक्स कैलकुलेट कर पाए तो कर लेंगे। एग्री इनकम है ना, तो पार्शियल इंटीग्रेशन भी हो जाएगा फिर, इफ यू वांट, विल सी। क्या रे, 4 स्टेट्स है ना, हमारा हो गया ना वो, नहीं 32 एडी वाला, 32 एडी वी रिवाइज्ड इट ना, तू नहीं था शायद उसमें। 4 स्टेट्स में अगर आप बैकवर्ड एरियाज में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो न्यू एलिजिबल जो भी न्यू प्लांट एंड मशीनरी उसका 15% इज अलावेबल एक्सपेंडिचर, और एडिशनल डेप्रिसिएशन 35%। वेरी गुड, ठीक है। नाउ लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। कम ऑन, रेडी हो क्या तुम? पढ़ लो पहले, या नहीं किया तो भी चलेगा। टैक्स कैलकुलेशन एग्री के इसमें कर लेंगे बाद में अगर चाहिए तो। वो हिंट एक्चुअली क्वेश्चन मॉड्यूल में नहीं है, मैंने हिंट डाला हुआ था। ये आई थिंक सेल्फ इवैल्यूएशन में क्वेश्चन दिया है मैंने, सेल्फ इवैल्यूएशन बुक में डाला था, इसलिए हिंट दिया था तभी आपको। एक हिंट है ना लास्ट में, देयर इज इनकम फ्रॉम एचपी सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पीजीबीपी, ये हिंट नहीं है क्वेश्चन में ओरिजिनली। हाँ
करे रेडी? आर यू रेडी? क्या पूछा है क्वेश्चन में बाय द वे? टोटल इनकम। तो टोटल इनकम के लिए अपने को क्या चाहिए? फॉर टोटल इनकम व्हाट डू वी वांट? हेड्स ऑफ इनकम। तो कितने हेड्स ऑफ इनकम है यहाँ पे? एक एडजस्टमेंट दिया है ना, एक पॉइंट है कि असेसी हैज टेकन अ लोन, ही हैज रीपेड इट एंड व्हाट? नो नो there's an adjustment number 5 which is housing loan principal repaid during the year 50 and it relates to a residential property occupied by him. इतना सेंटेंस है, आपको समझ में आना चाहिए. there's a house property and there is SO property. there's a SO property in this question. so it's a SO property and there's a housing loan repaid, वो ATC में जाएगा. इंटरेस्ट है वो डिडक्शन करके मिलेगा आपको. so we have two heads of income, we have HP and we have PGBP. correct? ATC is principal repayment. ATEE में इंटरेस्ट जाता है विच इज अबाउट 2 lakhs. इंटरेस्ट 24B में जाता है ना, हाँ 2 lakhs का. उसके ओवर एंड अबाउ इंटरेस्ट हो तो ATEE में आता है इफ यू सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशन. और प्रिंसिपल EMI कंसिस्ट ऑफ 2 parts, वन इज इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल. प्रिंसिपल रीपेमेंट किधर जाता है? ATC में जाता है. और इंटरेस्ट किधर जाता है? HP के वर्किंग में. डिडक्शन अंडर 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट. वहां पे 2 लाख का लिमिट है. और 2 लाख के ऊपर अगर होगा तो ATEE में, अगर कंडीशंस ऑफ ATEE आर सेटिस्फाइड. लोन शुड बी सैंक्शन. हाउसिंग लोन आपने कब सैंक्शन करके लिया? फर्स्ट टाइम व्हेन डिड यू गेट द लोन? 16-17. देन द रीपेमेंट गोज ऑन द लोन इज फॉर 20 years, 15 years. So next 20 years you are repaying, and next 20 years when you are repaying there is going to be interest. So next 20 years you can claim ATEE. समझा ना? हाँ, डन है क्या? समझा ना? हाँ, तो सॉल्व करते हैं. थैंक यू काका. आज ब्रेक नहीं लेंगे, नॉन स्टॉप करेंगे. चलेगा ना? देन आई एम प्लानिंग टू लीव एट बाय 4:30, 4:35, 40 के आसपास छोड़ देती हूँ फिर. नहीं, मुझे आज लेट होगा, फिर आज मुझे बाहर जाने का है कहीं, तो आई विल टेक टिल 4:35, 40 वगैरह. उरी हो गई ना देख के, ऐसा उरी. हाँ, इट्स अ नाइस मूवी. लेके जाने वाले. गुड. तुम लोग अभी कुछ नहीं करने का, पहले पढ़ाई के बारे में सोचो. मूवी जाने दो सारा. हाँ, एक आध दिन पढ़ाई करने के बाद संडे 1 day इफ यू रियली जेन्युइनली वर्क हार्ड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, देन एक खुद को तुम मूवी ये दे सकते हो. यस, यू कैन पैम्पर योर सेल्फ एंड अलाउ योर सेल्फ टू वॉच अ मूवी, बट दैट इज प्रोवाइडेड यू हैव स्टडीड 13 to 14 hours. Of course. Per day? I mean what? नहीं, क्लास के बाद. स्टडी इज ऑलवेज योर सेल्फ स्टडी. क्लास में जो स्टडी होती है वो उसको सेल्फ स्टडी नहीं बोलते. क्लास के समय में तुम्हारा देखो, हर एक का शेड्यूल अलग है. एवरीबडी हैज देयर ओन एक्स्ट्रा क्लासेस, यू ऑल मैनेज. हो गया, अभी 10 दिन तो बचे हैं, है ना? 10 दिन बचे, लास्ट 10 days टू गो. देन नोबडी विल डिस्टर्ब यू. देन यू एंड योर बुक्स फॉर 14 hours. ओके? नो फेसबुक, नो व्हाट्सएप. हाँ, थोड़ी देर ब्रेक लेके आपने वैसा कर दिया तो ठीक है. फोन बार बार ऐसे देखना नहीं है. नो एडिक्शन ऑफ दैट, कीप इट असाइड. एट अ टाइम पढ़ाई के लिए कितनी देर बैठ सकते हो? 4 hours का स्लॉट बैठो तो बैठो. 2 घंटे के लिए बैठना तो प्लीज डोंट सिट एंड स्टडी. वो बाय द टाइम यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर स्टडीइंग एंड गेट द हैंग ऑफ इट, ऑलरेडी 2 hours आर ओवर. समझ में आता है क्या? एटलीस्ट 3.5 hours का स्लॉट, 4 hours का स्लॉट होना ही चाहिए. हैव ब्रेकफास्ट, सिट एट 9 o'clock, सिट टिल 12:30, 1 लंच के लिए उठो, फिर 1 घंटा ब्रेक ले लो ना. टेक एन ऐप, वॉच टीवी, गो चैट विथ योर फ्रेंड्स एंड सी योर व्हाट्सएप एंड सी योर फेसबुक और जो भी आपको देखना है. ओके? 1.5 घंटा ले लो वहां पे, 1.5 घंटा ले लो, बट प्रोवाइडेड यू हैव स्टडीड फॉर दैट 4 hours, यू शुड डिजर्व अ ब्रेक. डोंट गिव योर सेल्फ अ ब्रेक जस्ट लाइक दैट. Deserve a break. If you study for 4-5 hours का slot, फिर yes, you deserve a break. Then take a break. Then sit at 2 o'clock. Then take the next 4 hours का slot लो. फिर 2 to आगे का 6 o'clock तक बैठने का. If you feel hungry in between, keep a box of what biscuits or something you keep वहां पे ready रख के, पहले ही plan करके you have to sit and then study. तो वो slot complete करो. फिर उठने का, बीच में पानी पीने के लिए भी नहीं, बिल्कुल उठना नहीं, मतलब उठना ही नहीं है. You have to sit and study.
डू यू अंडरस्टैंड दैट? उसको बोलते हैं पढ़ाई करना। ऐसे तुम 1 घंटा पढ़ रहे हो, 2 घंटा फ्रेंड से, अरे मुझे बहुत टेंशन आ रहा है, कैसे पढ़ू, किस चीज का, डोंट डू दैट। वो पढ़ाई नहीं है फिर, डोंट डू दैट। समझा क्या? फिर भूख लगी है, फिर यही हो रहा है, आई डोंट नो क्या, सब पढ़ाई के टाइम ही सब कुछ नहीं करना है आपको। स्लीप फॉर 6 आवर्स 7 आवर्स मोर देन इनफ, इनफ, एब्सोल्युटली इनफ। ठीक है, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। किधर गया मेरा पेन? माय पेन? हाँ ओके, स्टार्ट करते हैं। एंड इस टाइप का पढ़ाई किया ना, फिर संडे को 2 घंटे उरी मूवी भी देख के आ सकते हो। फिर देन गिव योर सेल्फ दैट ब्रेक, 2 आवर्स का ब्रेक देना ही चाहिए, रिफ्रेश। संडे के दिन कुछ नया नहीं पढ़ना है, रिविजन करना है। समथिंग दैट यू हैव स्टडीड अ फ्यू डेज बैक एंड यू नो यू आर टेंडिंग टू फॉरगेट इट, स्टडी इट। प्रॉपर प्लानिंग करके करो, यू कैन, इट्स नॉट गोना बी डिफिकल्ट। 3 months इज मोर देन इनफ फॉर बोथ द ग्रुप्स, मोर देन सफिशिएंट टाइम। ठीक है, हाँ चलो लेट्स राइट। जरा मुझे हेडिंग बताना, क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन क्या है? हाँ, सो राइट डाउन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ओ इधर जीएसटी पेनल्टी वगैरह भी है, ठीक है। 13 ऑफ कौन है रे नाम? राजू। फॉर एवाई 1920 प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन नोट 1। ओ एचपी पहले लिखू क्या? इनकम फ्रॉम एचपी नोट 1 करेंगे। और कुछ एग्जाम में ऐसा हो गया गड़बड़, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि पीजीबीपी फर्स्ट एंड देन एचपी, नो वरीज एट ऑल। टोटल इनकम ही पूछा ना, टैक्स वगैरह नहीं पूछा है ना? कुछ डिडक्शंस हैं क्या यहाँ पे? लग नहीं रहा है, देखते हैं। तो जीटीआई, लीव सम स्पेस, लेस डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। NTI, this is your main answer. Note 1 HP facts क्या? What are the facts of the question? What is the fact of the question? What is the fact of the question? That HP is SO property here. बराबर है? हाँ, पढ़ लो वो 5th point जो HP से related है। Housing loan was repaid and it relates to RHP which is occupied by him. Interest is 23. Housing loan was taken from Canara Bank. These amounts are not dealt with in the P&L above. ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम डील करेंगे। वैसे भी ये एचपी को बिलोंग करता है, तो एचपी का अलग वर्किंग बनाएंगे। So you know this is a SO property. So particulars, 1 column, HP, SO, writing speed, super fast. Come on, quick. Municipal taxes,
NAV less deductions under section 24A standard deduction 24B interest on borrowed capital. Income from HP. What is your GAV is of course nil. No municipal tax is allowed because it's a SO property. NAV nil. Standard deduction not there. How much is the interest? 23. It is of course within the limit. लिमिट जो भी हो, वैसे भी घर खरीदने के लिए लिया है आपने, तो जो भी लिमिट होगा वो 30 या 2 लाख के अंदर ही आप. अच्छा, ऐसा क्यों दिया इस क्वेश्चन में that you have taken a loan from Canara Bank? Why is it given in the question that you've taken a loan from Canara Bank? प्रिंसिपल रीपेमेंट का 80C क्लेम करने के लिए. ध्यान से सुनना. इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का डिडक्शन, ये वाला सुनो, ये 23 वाला डिडक्शन मिलेगा भले ही आप लोन किसी से भी ले लो, बट 80C का डिडक्शन प्रिंसिपल रीपेमेंट के लिए तभी मिलता है व्हेन द लोन इज टेकन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. वहां पे अगर मैंने चेंज कर दिया और बोला द लोन वाज टेकन फ्रॉम हिज रिलेटिव्स, फिर 80C का डिडक्शन नहीं मिलता. ये इंटरेस्ट वाला मिल जाता, बट 80C का डिडक्शन आपको नहीं मिलता. यहाँ पे इसलिए दिया है वो कैनरा बैंक से लिया है. समझा क्या आपको? हाँ, तो 80C आने वाला है. कितना? प्रिंसिपल रीपेमेंट 50,000. अभी लिख दे क्या तुरंत? तो खत्म हो जाएगा. चलो लिख दो जल्दी. 80C प्रिंसिपल रीपेमेंट फॉर हाउस प्रॉपर्टी, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन. How much is that? 50,000. Correct. If I changed in the question and I said it was not from a bank but from relatives, 80C मुझे नहीं मिलता. ठीक है? Coming back. HP is over. So note 2. Note 2. Profits and gains of business and profession. Particulars, 2 columns, inner column and outer column. मैंने क्या बोला? हमेशा क्या सोचने का? मेथड ऑफ अकाउंटिंग. क्या है मेथड ऑफ अकाउंटिंग? कुछ नहीं दिया है, मतलब मर्केंटाइल. और सेल्स का फिगर देखो क्या है, 2 करोड़ के आसपास ऊपर है, मतलब प्रिजम्पटिव वाला ऑप्शन नहीं है. सो दीज आर द 2 पॉइंट्स वेयर यू टेंड टू मेक मिस्टेक. आगे. So let's start with net profit. Net profit as per profit and loss account, 5 lakhs. Start with the debit side. Opening stock. Is there an adjustment for opening stock? No adjustment. Purchase of raw material. Is there any adjustment for purchase of raw material? No. मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस 5,70,000. इसमें कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है. जीपी नो प्रॉब्लम. एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस देयर इज एन एडजस्टमेंट. एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस इंक्लूड 46. फर्स्ट एडजस्टमेंट. एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस इंक्लूड 46,000 पेड एज कमीशन टू ब्रदर. द कमीशन अमाउंट एट द मार्केट प्राइस इज 36. तो फेयर मार्केट वैल्यू 36. अनरीजनेबल कितना है? 10,000. डिसअलाउंस अंडर विच सेक्शन? 40A2. बराबर. सो राइट डाउन. एड कमीशन टू ब्रदर disallowed under section 40A2 unreasonable. So unreasonable is 10,000. Correct.
टू जीएसटी पेनल्टी। ना यहाँ पे ना एक मॉड्यूल में एक नोट है, सुनो ये क्यों क्वेश्चन में डिस्कस करूँ, आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग विथ यू हियर। जीएसटी पेनल्टी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेनल्टी। अगर मैंने आपको क्या सिखाया है, इफ पेनल्टी रिलेट्स टू ब्रेकिंग ऑफ अ लॉ, इट्स कॉल्ड एज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ. व्हाट इज इट कॉल्ड एज? कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ. देन दैट पेनल्टी इज डिसअलावेबल. इफ द पेनल्टी इज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, लाइक कभी आपके क्लाइंट्स के यहाँ से भी आपने कुछ डिले कर दिया, तो यू कुड हैव टू पे सम पेनल्टी इन अंडर सम कोर्स ऑफ बिजनेस ऑल्सो, दैट पेनल्टी इज अलावेबल. नाउ इवन लॉ के अंडर की जो पेनल्टी है ना, वो दो टाइप्स की है. अभी लॉ की पेनल्टी की बात करेंगे. एक लॉ ब्रेक करने की पेनल्टी, दूसरा होता है कंप्लायंस वाली पेनल्टी होती है, कॉम्पनसेटरी, मतलब जीएसटी का रिटर्न लेट भरा, तो मैंने ऐसे लॉ ब्रेक नहीं किया, बट फॉर सम रीजन आई कुडंट फिल इट इन टाइम, एंड सो आई एम गोइंग टू पे इट, मे बी फाइल द रिटर्न आफ्टर 10 days. तो 10 days डिले हो गया, तो मैंने जीएसटी की पेनल्टी लेट फी पे की, दैट लेट फी इज अलावेबल. तो ऐसा नोट है कि अगर कॉम्पनसेटरी है लेट फी पेनल्टी, देन इट इज अलावेबल, बट इफ इट इज फॉर ब्रेकिंग ऑफ लॉ, इट इज नॉट अलावेबल. कुछ नहीं दिया है, अज्यूम, मॉड्यूल हैज ऑल्सो अज्यूम्ड दैट दिस पेनल्टी इज फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अ लॉ एंड हेंस इट इज डिसअलाउड. मॉड्यूल ने भी क्या अज्यूम किया है, इट इज फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द लॉ एंड हेंस इट इज डिसअलाउड. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? सो वी आर गोइंग टू अज्यूम द सेम. तो जीएसटी पेनल्टी हम डिसअलाउ करेंगे, राइट? सो राइट डाउन जीएसटी पेनल्टी, एड में सेकेंड पॉइंट, how much is that coming to? 5,000. And GST paid is 1,10,000. Now paid, is GST a indirect tax? Yes. Indirect taxes are allowable as expenses? Yes. But जब आप ऑफिस में आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे तो प्लीज याद रखना, जीएसटी का रूटिंग एंट्री, अकाउंटिंग एंट्री कभी भी पीएनएल के थ्रू नहीं होता है. We always record it through balance sheet. मतलब whatever GST on sales we show it as liability, और जो set off है वो हम asset करके दिखाते हैं. फिर दोनों की set off I've shown, we've done accounting entries, but ठीक है, अभी PNL को डेबिट किया तो चलो कोई बात नहीं है, indirect tax है तो हम उसको अलाउ कर देंगे, बट नेवर, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू डेबिट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू PNL, मत करना आप, ठीक है? हाँ, बट यहाँ पे GST पेड, इज इट एन अलावेबल एक्सपेंडिचर? यस, 1,10,000. जनरल एक्सपेंसेस 54. Is there an adjustment for that? जनरल एक्सपेंसेस के लिए कोई एडजस्टमेंट है? नहीं. इंटरेस्ट टू बैंक ऑन मशीनरी टर्म लोन, देयर इज एन एडजस्टमेंट. बैंक टर्म लोन interest actually paid up to 31st March was 20,000 and the balance was paid in October 19. Balance was paid in October 19 और टोटल इंटरेस्ट कितना है? 60 में से 20,000 आपने ड्यूरिंग द ईयर पे कर दिया एंड 40,000 आपने कब पे किया? इन October 2019. सो व्हाट इज द सीन? 40,000 कब अलाउ होगा? नेक्स्ट ईयर. अभी अलाउ होगा क्या? नहीं. October 19 मतलब, डू यू अंडरस्टैंड, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन गेट्स कवर्ड अंडर 43B. Gets covered under 43B. Whatever you pay during the year, is it allowable? Yes. Whatever you pay within the due date is definitely 30th September here, because assessee ka turnover is more than 2 crores. He is definitely covered under tax audit. So sales से हमेशा दो चीजें पता चलती है, प्रिजम्पटिव एंड प्लस ड्यू डेट का भी आइडिया आ जाता है. समझ में आ रहा है आपको? तो ये ड्यू डेट पक्का यहाँ पे 30th सितंबर है. आपने अक्टूबर में पे किया 40,000. इज दैट एन अलावेबल एक्सपेंडिचर इन दिस ईयर? नो, यू शुड हैव पेड विद इन द ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न, विच यू डिडंट डू. देयरफॉर दैट 40 इज दिस अलावेबल एक्सपेंडिचर फॉर दिस ईयर एंड अलावेबल एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट ईयर. सो 40 को डिसअलाउ करना है, मतलब ऐड करना है. सो ऐड में थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, disallowed under section 43B. Why is it disallowed? As paid after the due date of the return. है ना? 40,000 आपने कब पे किया? October 19. आपका ड्यू डेट September 19 का है. क्लियर टू एवरीबडी? श्योर? आगे डेप्रिसिएशन, एनी एडजस्टमेंट करना है क्या?
ओ चलो करते कैलकुलेट। अच्छा इधर क्यों बोला रे इग्नोर एडिशनल डेप्रिसिएशन, ऐसा सेंटेंस क्यों दिया? मैन्युफैक्चरर है, अगर ये सेंटेंस नहीं होता तो आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन लेना चाहिए, बिकॉज इट्स गिवन ही इज अ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है, बट इन्होंने बोला इग्नोर कर दो। ठीक है चलो, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालो। ए टोटल एडिशंस कितना है? 4 लाख। उसमें से मोर देन 180 डेज कितना है? 2 लाख। तो बचा हुआ 2 लाख इज फॉर लेस देन 180। हाँ तो ये एक 2 लाख का एडिशन है, और जो लेस देन 180 है उस 2 लाख पे एस्ट्रिक मार्क दे देना। करेक्ट। तो सेल कंसिडरेशन क्या है? कुछ नहीं क्या? तो 12 लाख नहीं सॉरी 14 लाख पे 15% निकालो, और 2 लाख पे हाफ निकालना 7.5 के हिसाब से। तो कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन? 2,25,000। हाँ इस 2 लाख पे कितना निकालना है? 7.5%। और ये 14 लाख पे कितना निकालोगे? 15%। समझ में आ रहा है क्या? तो डेप्रिसिएशन इज 225। अकाउंटेंट तुमने क्या किया? तुमने सिर्फ 2 लाख डेबिट किया, 2 लाख डेबिट किया, और भी 25,000 डेबिट करो, और भी डेबिट करो मतलब खर्चा क्लेम करो, मतलब प्रॉफिट से लेस करो। एम आई गोइंग फास्ट? लेस ना? हाँ डेप्रिसिएशन, इट्स ए रिविजन बैच नो। ओके क्या क्या बता मेरे को, क्या हुआ? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ डन। क्या क्रेडिट पे आओ, क्रेडिट साइड। अच्छा यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी पूछा होता तो क्या होता बाय द वे? पार्शियल इंटीग्रेशन करना पड़ता। एग्री इनकम है ना? हाँ टैक्स लायबिलिटी नहीं पूछा है, ठीक है। सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है। प्रॉब्लम है क्या सेल्स क्लोजिंग स्टॉक में? नहीं। जीपी नहीं। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी प्रॉब्लम है? हाँ इट्स एग्जम्प्ट इनकम, यहां से लेस करो। सो लेस में डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी एग्जम्प्ट। अंडर सेक्शन 1034 कितना है? 15,000। इनकम टैक्सेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे लेस कर रहे हैं। अकाउंटेंट ने ऐसे ही अननेसेसरली उसको पीएनएल में ऐड कर दिया। एंड एग्री इनकम, एग्री इनकम इज एग्जाम्प्ट अंडर विच सेक्शन? सबसे फर्स्ट सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। हाँ फर्स्ट सेक्शन इंपॉर्टेंट इज एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जाम्प्ट अंडर 10(1). Agri activities are exempt even from GST, even exempt from GST। एग्री से रिलेटेड सब कुछ बोल देने का। फिर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स अलावेबल एक्सपेंडिचर 150%। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब कवर हो जाता है फिर, बराबर। चलो कितना है? ये एग्री इनकम कितना है? 180। क्या हुआ? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, बाकी है।
नहीं बाकी है ना, व्हाट ही सेइंग सेकंड इज बाकी, या सेकंड इज देयर, हाँ नहीं थर्ड इज ऑल्सो देयर, वेट हाँ, वी कांट गो, ऐसे हरी नहीं करने का। हाँ डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, एडजस्टमेंट्स देखने का। हाँ देखो एडजस्टमेंट नंबर 2, assessee paid 33,000 in cash to a transport carrier. This amount is included in manufacturing expenses. Assume that the provisions relating to TDS are not applicable for this payment. ठीक है वो जाने दो, लेकिन 33 कैश में तो डिसअलाउ कर दो। 48 paid to transporter, the limit is 35,000. So is that allowable? Yes. No adjustment. Now tell me the third one. Have I done this question with you all earlier? नोट्स में है क्या? मुझे नहीं लग रहा है। सेल्फ इवैल्यूएशन में है। चलो क्योंकि ये थर्ड एडजस्टमेंट के मॉड्यूल के 2 व्यूज है, मुझे वो डिस्कस करना है। थर्ड वाला तुम बोलो, तुम क्या करोगे? हाँ, सैलरी पेड टू स्टाफ हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, सो नाउ रिकॉर्डेड। तो क्या रिकॉर्ड करने का है? खर्चा। तो खर्चा कितना है? 4,000 इंटू 12, 48,000। तो खर्चा रिकॉर्ड करने का मतलब प्रॉफिट से लेस करने का। हाँ ठीक है, लिखो लेस, और फिर बोलती हूँ मॉड्यूल ने क्या किया है। मॉड्यूल ने ऐड किया है, बोलती हो ना, तुम लिखो ना, अभी पहले लेस तो करो तुम। क्या है ये? सैलरी टू स्टाफ। नॉट रिकॉर्डेड, तो रिकॉर्डेड नाउ, लेस करना पड़ेगा। बराबर। तो मुझे बोलो अभी पीजीपीपी कितना आ रहा है फिर? 287। 287 समझा क्या? हाँ अब मैं बोलूं कि मॉड्यूल ने ऐड क्यों किया है? सुनो, मॉड्यूल से देयर आर 2 व्यूज। मॉड्यूल से देयर आर 2 व्यूज। वन व्यू इज यू कैन ट्रीट दिस एज एक्सपेंडिचर जो आपका छूट गया। मतलब कैसे होता है, अकाउंटेंट एट द एंड ऑफ द ईयर ना, जब उसने सब पोस्टिंग वोस्टिंग कर दिया, बोलता है अरे मेरे पास जो कैश है और फिजिकली जो कैश आ रहा है उसमें 48,000 का डिफरेंस आ रहा है, क्या हो गया, क्या गलती हो गई? तो वो स्ट्राइक करता है 48,000 क्या खर्चा है ईयरली, ओ एक स्टाफ का सैलरी है, मैंने उसको दिया लेकिन रिकॉर्ड करने में मिस हो गया, तो वो रिकॉर्ड कर देता है। ये जेन्युइन है, बराबर। स्टाफ को आपने सैलरी दिया 4,000, ठीक है, आप रिकॉर्ड पे दिखाते हो हमारे पास 3 ही स्टाफ है और वो 4th वाला स्टाफ है। वो कौन सा है? 4th वाला। लेकिन आप बुक्स में क्या दिखाते हो, कितने स्टाफ है? 3। मस्टर्ड पे भी 3 लोग हैं, 3 लोगों का सिग्नेचर है, 3 लोगों का ही सैलरी दिखाते हो। क्यों? बिकॉज यू अर्न अ लॉट ऑफ ब्लैक मनी इन कैश, यू डोंट वांट टू शो दैट। और कुछ खर्चे आप उसी में से कर देते हो, तो आप खर्चे भी रिकॉर्ड नहीं करते, वो वाला इनकम भी रिकॉर्ड नहीं करते। दिस इज अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर विच कैन बी ट्रीटेड एज अनडिस्क्लोज्ड इनकम। एंड क्योंकि ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम है इसलिए मॉड्यूल में ऐड किया है। बट मॉड्यूल ने दोनों आंसर्स दिए, ऐड करने वाला भी आंसर दिया है और लेस करने वाला है। अभी आप एट इंटर लेवल गो विद द लेस वाला आंसर, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, बट इट डज नॉट हैपन लाइक दिस व्हेन यू मिस आउट एन एक्सपेंडिचर। इफ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एन इनकम टैक्स ऑफिसर, वो लेस नहीं करने वाला है, वो मेरे इनकम में ऐड ही करने वाला है, सेइंग दैट तुमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तुम्हारा फिर कैश और ये कैसे, तुम 3 ही स्टाफ दिखा रहे हो, रेड हो गई। वो बोलता है अरे तुम्हारे ऑफिस में ऐसे स्टाफ को पूछता है कि कितने लोग यहाँ काम करते हैं, प्यून को पूछता है, प्यून बोलता है हम 5-6 लोग हैं। मस्टर्ड देखते तो 3 ही लोग हैं। हाँ मतलब कुछ खर्चा ये दिखा नहीं रहे। क्यों नहीं दिखा रहे? अरे इतना उसको 5-6 लाख महीने का कैश आता है, नहीं रिकॉर्ड करता है वो। 5-6 लाख कैश का क्या करूं? तो बाबा चलो कुछ खर्चे कैश में ही कर दो, और बचा हुआ 2 लाख के खर्चे कैश में कर दो, 3 लाख घर पे कैश रख दो, यूज इट फॉर योर पर्सनल एक्सपेंसेस, होटल एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग, घर का इंटीरियर। कौन पूछने वाला है? कोई नहीं पूछने वाला है, समझा? इस तरह से लोग करते हैं। फिर ये जो अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है ये इनकम बन जाता है। बट आप ऐसे करेंगे कि अभी नहीं, आप क्या करो, लेस कर दो। हैज मॉड्यूल गिवन बोथ द आंसर्स? यस, यू कैन कम एंड चेक द मॉड्यूल, इट हैज बोथ द आंसर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, नहीं देखने से फिर आपको कॉन्फिडेंस आता है कि यस ऐसा होता है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? हाँ, तो आंसर इज 2,87,000। डन।
चलो नेक्स्ट वाला क्या है, हो गया क्या? हाँ कंप्लीट करो फिर, इजी क्वेश्चन है ये। एग्री में लेती हूँ ना, फिर वो 60-40 वाले अलग अलग भी है। यू वांट टू डू टैक्स कैलकुलेशन क्या? पार्शियल इंटीग्रेशन जगह नहीं है, तू वो मत बता रहे अभी, ठीक है। चलो पहले सब्स्टिट्यूशन करो। हाँ मैम क्या, बोलो। 114A क्या है, मैं बोलती हूँ, मैंने प्रोविजन सिखाया है, मैं बोलती हूँ। हाँ? ये फिनिश करते फिर बोलती हूँ। आई हैव टॉट यू द प्रोविजन, आई टेल यू। इनकम फ्रॉम एचपी कितना है? 114 नहीं है, वो 14 है। हाँ -23। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन 287 एंड 50। इतना, यही इतना सा क्वेश्चन है क्या? हो गया। 260 जीटीआई और 50,000 लेस करके क्या आएगा? पार्शियल इंटीग्रेशन आएगा ही नहीं, टैक्स जीरो ही आने वाला है। हो गया, टैक्स वर्किंग भी हो गया। टैक्स जीरो क्यों आने वाला है? पार्शियल इंटीग्रेशन कब आता है? व्हेन नॉन एग्री इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जम्पशन। समझा क्या? तो टैक्स इज गोइंग टू बी जीरो इन दिस केस। समझा क्या? ओके, just a minute, we'll take a break, 2 minutes का break, very short, and then we'll start immediately. I'll just make a call. हो गया, this is done. अच्छा एक मिनट पहले, 14A क्या है? एग्री इनकम है ना, एग्जम्प्ट वाला। तो एग्जम्प्ट इनकम के लिए जो खर्चे होते हैं वो भी हम कंसिडर नहीं करते। जब एग्जम्प्ट इनकम, जैसे iOS में सिखाया है, इफ यू एनी एक्सपेंडिचर इनकर टू अर्न एग्जम्प्ट इनकम इज एग्जम्प्ट। ठीक है, टेक अ ब्रेक, जस्ट 2 minutes break, don't go out.